गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। So friends, chapter number 8 function. Before understanding this chapter, first of all, we will understand about set. Friends, in the earlier standards, you have studied set even though we are just revising. So first of all, what is the meaning of set? So the simple meaning of set is group. Example, a set of first 5 natural numbers. So in the form of set, we can write A is equal to, in the curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, bracket over. Second example, a set of vowels. So friends, we know that in the English alphabet there are 5 vowels, and those are A is equal to, in the curly bracket, A, E, I, O, U. So these are the examples of set. Now we will understand some number sets. First one, set of natural numbers. So natural numbers are indicated by capital N. So N is equal to 1, 2, 3, 4 dash dash dash. Means there are uncountable natural numbers. So we don't know which number will be the last. So we will put here dash dash dash. Second set of whole numbers. So friends, whole numbers are indicated by capital W. Whole numbers starts with 0. So W is equal to, in the curly bracket, 0, 1, 2, 3, 4 and again dash dash dash. Now the third number set is set of integers. Integers are indicated by capital I or capital Z, and in integers all those numbers come which are not in fraction or not in decimal. All the positive integers and all the negative integers and 0 comes in the set of integers, like in the curly bracket, dash dash dash, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dash dash dash. Means uncountable integers of minus and 0 and uncountable number of positive integers are coming in the set of integers. Now fourth one, the set of rational numbers. So friends, in rational numbers also uncountable minus and uncountable plus numbers are coming, but rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of A upon B. Means all the fractions, all the decimals are included in rational numbers. And last, set of real numbers. Friends, all the numbers which you can imagine are coming in set of real number. Means in R all natural numbers are coming, all whole numbers are coming, all integers are coming, all rational numbers are coming and irrational numbers are also coming. Means ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जो रियल नंबर के सेट में ना आता हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सभी नंबर सेट्स की इंफॉर्मेशन ले ली है। अब हम हमारे चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। सो अवर 8th चैप्टर फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will think that what is function. So the definition of function is
if A and B are any two non-empty sets and each element of set A is related with one and only one element of set B by some rule, relation or correspondence, then it is called a function from set A to set B and is denoted by F, G, H, K, etc. मीन्स A और B ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी इन दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं और सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ किसी रूल, रिलेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से जुड़ा हुआ हो तो उसे सेट A और सेट B का फंक्शन कहेंगे, जिसे हम स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, स्मॉल k इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो फ्रेंड्स, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें अच्छे से समझा जा सकता है. एग्जाम्पल, फंक्शन a टेंड्स टू b, a is equal to -1, 0, +1 and b is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and function is f of x is equal to 2x plus 5. तो फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें आपको कहा होगा कि फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज डिसाइड करना है. तो फ्रेंड्स, हर बार आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपको यहाँ पर फंक्शन इंडिकेट कर रहा है, इस फंक्शन में a टेंड्स टू b, यानी ये जो एरो आपको दिख रहा है वो a में से निकल रहा है और b में लग रहा है. तो जिसमें से एरो निकलता हो वो हमेशा डोमेन होगा और जिसे एरो लग रहा होगा वो कोडोमेन होगा. तो हमारे इस क्वेश्चन में जो सेट A है वो हमारा डोमेन है और सेट B वो हमारा कोडोमेन है. अब बात रही रेंज की, तो रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की वैल्यू अगर मैं फंक्शन में रख दूं तो जो आंसर मुझे मिलेगा उसे मैं रेंज कहूँगा. तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो एरो है वो A में से निकल रहा है, तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन जिसे हम DF से इंडिकेट करेंगे वो हो जाएगा A, जिसकी वैल्यू है सेट में -1, 0 और 1 और ये एरो लग रहा है B को. तो हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा B, दैट इज़ इन द कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, यानी सेट B वो हमारा कोडोमेन है. अब रेंज फाइंड करने के लिए हमारा जो फंक्शन है 2x + 5, तो इस फंक्शन में हम हमारे डोमेन की हर एक वैल्यू को 1 बाय 1 रखेंगे. जैसे कि हमारे डोमेन की फर्स्ट वैल्यू है -1, तो fx, x की प्लेस पर हम रखेंगे -1, सो 2 x की प्लेस पर -1 + 5 एज इट इज़. नाउ 2 × -1 मीन्स 2 1 = 2 और माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, +5, 5 - 2 = +3. सेकेंड वैल्यू है 0, तो x की प्लेस पर हम 0 रखेंगे, मीन्स f0 = 2, x की प्लेस पर आ जाएगा 0 + 5. Now 2 zeros are 0 + 5 will be +5. And now the last value of domain is +1. So हम x की प्लेस पर +1 रखेंगे, तो f1 = 2, x की प्लेस पे +1, so 2 1s are +2 + 5 = 7. तो ये जो हमें 3 आंसर मिले वो हमारी रेंज है, जिसे हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे. RF means range of function is equal to 3, 5, 7. तो फ्रेंड्स, यहाँ
आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज का टॉपिक भी ख़त्म होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपको एग्ज़ाम में या आपकी एक्सरसाइज में भी बार बार टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस: one function, many one function and constant function. So now we will understand all these types of functions one by one. So the very first one is one function. So friends, suppose function a tends to b if for any two different elements of domain a their images or functional values are different, then the function f is called one function. यानी अगर हम सिंपल तरीके से इसे समझें तो आपको फंक्शन के अंदर डोमेन की वैल्यू रखनी है। अगर आपकी रेंज अलग अलग आती हो, यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स रखने से जो आंसर आ रहे हैं वो अगर हर बार अलग आते हो तो आपका फंक्शन वन फंक्शन है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन x टेंड्स टू y वेर x इज इक्वल टू -2 -1 0। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि डोमेन हमारा x है एंड कोडोमेन हमारा y है 0 1 2 3 एंड जो फंक्शन है वो है x+2। तो अगर हमें टाइप ऑफ फंक्शन जानना हो तो इस फंक्शन के इक्वेशन में हम डोमेन की सभी वैल्यूज़ रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x+2। तो x की प्लेस पे सबसे पहले हम रखेंगे -2। सो x इज इक्वल टू -2, देन f -2 इज इक्वल टू x की प्लेस पे -2 + 2 विल बी 0। इसके बाद की हमारी जो सेकेंड वैल्यू है वो है -1। सो x इज इक्वल टू -1, f -1 इज इक्वल टू -1 + 2। तो 2 + -1 विल बी +1 and last 0. So x is equal to 0, then f0 is equal to 0 + 2 will be 2. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज आ रही है या जो भी हमारे आंसर आ रहे हैं उनमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सभी अलग अलग आ रहे हैं। Hence the given function f is one function. Second one, many one function. So suppose function a tends to b, मीन्स यहाँ पर a हमारा डोमेन है। इफ़ फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन a देयर इमेजेस और फंक्शनल वैल्यूज़ आर सेम, द फंक्शन f इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इसे अगर सिंपल वे में समझना हो तो आपको जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में आप डोमेन a की सभी वैल्यूज़ 1 by 1 रखें। अगर आपका आंसर रिपीट होता हो, चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा हो, 3 बार रिपीट हो रहा हो, वो रिपीट होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा हो तो आप उसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फंक्शन a टेंड्स टू b, a इज इक्वल टू -2 -1 +1 +2 एंड b इज इक्वल टू 2 and 5 एंड fx इज इक्वल टू x² + 1। तो फ्रेंड्स, हमारे डोमेन a की सभी वैल्यूज़ को हम हमारे फंक्शन में रखेंगे। आप देख सकते हैं x की वैल्यू -2 जब हम रखते हैं तो -2 का स्क्वायर जो कि +4 हो जाता है और +1 एज इट इज़, तो हमारा आंसर आया 5। फिर x की वैल्यू सेकेंड टाइम -1 है तो x² यानी -1 का स्क्वायर +1 प्लस ये 1 तो कांस्टेंट आने ही वाला है, 1 + 1 2। फिर x की वैल्यू हम 1 रखने वाले हैं, x की वैल्यू 1, f1 1 का स्क्वायर +1 अगेन +1 कांस्टेंट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 वैल्यू रिपीट हो गई हैं। तो अगर एक वैल्यू भी रिपीट हो जाती है तो हम उसे 1 फंक्शन कहेंगे। और एक लास्ट वैल्यू है वो भी रख देते हैं +2। तो x की प्लेस पर जब आप +2 रखेंगे तो +2 का स्क्वायर +4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर भी रिपीट होता है तो भी हम उसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे।
तो एट लास्ट हम ये सेंटेंस लिखेंगे, हैंस द गिवन फंक्शन f इज मैनी वन फंक्शन। एंड लास्ट, constant function. Suppose function a tends to b if for each element of domain a the image or functional value is same, then function f is called constant function। यानी फंक्शन में अगर आप डोमेन की वैल्यू डालते हैं और हर बार आपको सेम आंसर मिलता है तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। या बहुत सिंपल वे में अगर समझना हो तो जो आपको फंक्शन दिया है f(x), उसमें आपको सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू दी हो, उसके साथ में x दिया ना हो, तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं तो x की प्लेस पर आप 1 2 3 रख नहीं पाएंगे, तो हर बार आपका आंसर 5 ही आने वाला है। सो देन फॉर वैल्यूज़ 1 2 एंड 3 ऑफ द वेरिएबल x वी गेट f(x) इज इक्वल टू 5, thus f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप जो कुछ भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।